ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि ये फाउंडेशन की करती सी, क्यों इस्तीफे दे गए। जी, उनका और चाइनीज़ कॉन्सुलेट में कौन सा कॉन्सुलेट है वो नहीं बताया गया है, लेकिन किसी एक कॉन्सुलेट में किसी एक ऑफिशियल और उनके दरमियान बात हुई कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनको रिपोर्ट दिया गया कि शायद 2014 में अब स्टीवन हार्पर नहीं जीत पाएंगे, तो शायद लिबरल्स की सरकार बन जाएगी, तो इसीलिए अब चाइनीज स्टेट को कुछ तो करना चाहिए। तो उनको बोला गया कि आप $1 मिलियन आप इसमें इन्वेस्ट करें डोनेशन के तौर पे। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਝੋਕ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਨੰਗਾ ਲੈਣ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मर्जी हवाई जहाज़ लड़ाकू जहाज़ लगा लैन। और चाइनीज़ स्टेट का एक इंटरफेरेंस वो कोशिश तो करेगा कि हम हर तरह से जो है, अब जैसे चाइनीज़ पुलिस स्टेशंस का मामला सामने आया कि उन लोगों ने अपने डिसिडेंट्स को या फिर वो लोग जो कानून से फरार थे उन लोगों को लीगली इलीगली वापस ले जाने के लिए उन लोगों ने ये स्टेशंस इस्तेमाल किए। अब वैंकूवर में भी एक उनका स्टेशन है, रिचमंड से। हाँ, रिचमंड में RCMP गई थी बड़ी तादाद में, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम तो हैं, तादाद में हम आपसे ज़्यादा हैं यहाँ पे कम से कम। लेकिन चाइनीज़ स्टेट कोशिश कर रही है अपना पावर दिखाने के लिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਫੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ The Harjinder Thin Show। ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਚਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡ ਸਨ। ਸੋ ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਚਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ $2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੀਅਰ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੀਨ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨੀਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। आपका बहुत शुक्रिया थन साहब। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਗਏ। जी, तो जैसे आपने बताया कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पियर एलियट ट्रूडो के नाम पे रखा गया, और इस पे कनेडियन गवर्नमेंट का एक एंडाउमेंट फंड इसमें इन्वॉल्व है, $122 मिलियन का जो उन लोगों ने दिया हुआ था उसमें, और उस पे वक्त लोग जो है उस पर डोनेशन देते रहते हैं। अल्टीमेटली ट्रस्ट का यही काम होता है। तो स्टूडेंट्स वगैरह जो हायर एजुकेशन के लिए आए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो चाहे कैनेडियंस हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा जैसे वजीफ़ा, जैसे आपने कहा, वो पियर ट्रूडो फाउंडेशन की तरफ से बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। जैसे वेनियर स्कॉलरशिप है,
उसी तरह का जो है ट्रूडो फाउंडेशन का स्कॉलरशिप भी है। $50,000 मिलते हैं आपको फंडिंग में जी। जो बाकी फंडिंग में आप देखिए वेनियर में भी उतना ही मिलता है, लेकिन ये और भी ज़्यादा प्रेस्टीज है वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ आपके सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं कि आपको लीडरशिप समिट्स में जाके जो है हिस्सा लेना होता है, आपको अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जाना होता है। तो ये एक आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है अगर आप ये स्कॉलरशिप आपको मिलता है। बड़ा कॉम्पिटिटिव है, पूरे कनाडा से जो है लोग आते हैं, मुश्किल से 6-7 लोगों को मिलता है। सारे कनाडा से? हाँ, सारे कनाडा से, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और लोकल्स मिला करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं के नेशनल्स को मिलता है। अच्छा। तो इसीलिए बड़ा प्रेस्टिजियस फाउंडेशन है। अब इसमें जैसे कि आपने कहा $200,000 इनको एक डोनेशन मिला था 2016 चीन में। से आ गई वो? हाँ, और चाइनीज बिजनेसमैन ने दिया था। तब इनको नहीं मालूम था कि इसमें दरअसल चाइनीज स्टेट की रजामंदी थी। चाइनीज स्टेट ने ही दरअसल कहा था कि आप जो है दीजिए $200,000। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि एक इंटरसेप्ट पकड़ा गया था 2014 में। एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन हुआ था, जो बिजनेसमैन है ज़ैंग बिन, चाइनीज़ मूल के, उनका और चाइनीज़ कॉन्सुलेट में, कौन सा कॉन्सुलेट है वो नहीं बताया गया है, लेकिन किसी एक कॉन्सुलेट में किसी एक ऑफिशियल के और उनके दरमियान बात हुई कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनको रिपोर्ट दिया गया कि शायद 2014 में अब स्टीवन हार्पर नहीं जीत पाएंगे, तो शायद लिबरल्स की सरकार बन जाएगी। तो इसीलिए अब चाइनीज स्टेट को कुछ तो करना चाहिए। तो उनको बोला गया कि आप $1 मिलियन आप इसमें इन्वेस्ट करें डोनेशन के तौर पे। और गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन को क्या उनको कहा चीन कि चीन ने बोला, चाइनीज गवर्नमेंट ने, अब ये एलिगेशन है ऑब्वियसली। वो बिजनेसमैन कनाडा च रहंदे हैं कि चीन च ही रहंदे इतने नहीं, कनाडा में रहते हैं, और वो अकेले नहीं है, न्यू जिनशेंग करके एक और बिजनेसमैन। तो इन दोनों के नाम से ये डोनेशन किया गया, और उनको अपेरेंटली चाइनीज स्टेट ने कहा कि आप डोनेशन दीजिए, हम आपको रिफंड कर देंगे ये पूरा पैसा, $1 मिलियन। अच्छा, अब उस $1 मिलियन का बहुत ही छोटा हिस्सा $200,000 मिला है ट्रूडो फाउंडेशन को। बाकी किधर गया 8 लाख? बाकी गया यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल को $7,50,000। उनका जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उसमें इन्वेस्ट किया गया, और इनका आइडिया ये था कि क्वेबेक के या मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाइना ले जाया जाएगा चाइनीज स्टडीज़ के लिए, या फिर जो है एक एक्सपीरियंस के लिए। तो इस इरादे से जो है ये इन्वेस्टमेंट किया गया। $50,000 और, क्योंकि आप 750,000 इनको गया और 200,000 इनको गया, $50,000 कहाँ गया? उस $50,000 से एक पियर ट्रूडो का स्टैचू बनना था, वो स्टैचू कभी बना नहीं। और वो पैसे का क्या हुआ? तो ये सवाल जो है अब लोग पूछ रहे हैं, और आपने देखा कि रेजिग्नेशंस हो गए। जो पास्कल फोर्नियर, उनकी जो सीईओ थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल पिछले महीने ही जब ये खुलासा हो गया कि अब चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट था इसमें, तो फाउंडेशन ने ये कोशिश की कि ये पैसा लौटाया जाए। वो ऐलान भी हो गया था, पास्कल फोर्नियर ने कहा था कि हम इसको वापस कर देंगे। उनके मुताबिक $140,000 ही दिया गया था, 200,000 पूरा नहीं मिला। 2 इंस्टॉलमेंट्स में इनको दिया गया था $70,000 का। अच्छा, आज ग्लोबल मेल ने आज सुबह बोला है कि जब लौटाने की बात आई पैसा, तब उनको पता चला कि लौटाएंगे किसको। जो डिटेल्स दिए तो वो तो फर्जी थे। किसी कोई इंसान कोई है ही नहीं जिसके नाम पे जो है आप वो पैसा लौटाएंगे। तो आप रिसीट, हाँ, ਜਦੋਂ उन्होंने पैसे देते किसी फर्जी ना तो डोनेट करते। हाँ, तो आप चाइनीज स्टेट को तो डायरेक्ट लौटा नहीं सकते। उस एंटिटी को आप लौटाने की कोशिश करें तो आपको पता चल रहा है कि उसके तो अकाउंट डिटेल्स ही गलत हैं, तो आप कैसे लौटाएंगे? और आप ऐसे ही किसी को वेरीफाई किए बगैर आप पैसा लौटा नहीं सकते। तो इसीलिए अब वो पैसा भी नहीं लौटा पाए हैं। तो एक वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक करप्शन एलिगेशन जो लगाया है ऑपोजिशन ने, तो यहाँ पे सरासर बेवकूफ़ी वाली बात हो गई है कि आपने बिना वेरीफाई किए आपने पैसे ले लिए। आपको लगा कि $200,000 मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। शर्मा जी, हुण जे तुसीं दान पुण्य दे पैसे रिसीव करने आ, फिर भी तुहानूं वेरीफाई करना पिया करू। हाँ, करना तो चाहिए, लेकिन अब जब 2 बड़े बिजनेसमैन, अच्छा ये यहाँ पे क्या हुआ स्टोरी कि 2015 में एक फंड रेजर था लिबरल पार्टी का, जिसमें ये लोग गए थे, ज़ैंग बिन भी आए थे। तो बेंसन वोंग करके जो चाइनीज़ बिजनेस चेंबर है कनाडा के, उनके घर पे ये प्रोग्राम हुआ था। तो आए थे और वहाँ पे मेल मिलाप हुआ। तो इसी तरह से जो है न्यू जिनशेंग और
झांग बिन की मुलाकात हुई लिबरल पार्टी के लीडर्स के साथ। उन्होंने कहा कि हम तो है भाई डोनेशन देंगे। अब कोई डोनेशन दे रहा है तो बड़ी खुशी की बात है कि अब वो रूज पे थे, उनका सितारा एकदम आसमान बुलंदियों पे पर पहुंच गया था, इलेक्ट होके आए थे 2015 में, तो 2016 में डोनेशन दे दिया। अब ये है, अब गले की हड्डी बन चुका है ये, क्योंकि अब चाइनीज स्टेट की मुदाखलत का जो इल्ज़ाम लगा है अब सबको मालूम हो गया है। तो इसीलिए अब इसको छुपाने का जो है, अब इनके पास कोई जरिया नहीं है, तो ये एक रेजिग्नेशन एक नेचुरल कोर्स ਅੱਛਾ था। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। जी ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣਾ, ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੀ। UBC ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ, ਹੈ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀ। ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ वाला इशू नहीं है कोई। कोई इशू नहीं है, इशू होता भी नहीं अगर चाइनीज स्टेट की मुदाखलत की बात नहीं होती। अब ऐसे बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिएगा, यूबीसी में भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई क्लॉक टावर जो है किसी चाइनीज़ ट्रस्ट ने दिया था, या मतलब किसी बिजनेसमैन ने। ऐसे बहुत से लोग हैं, यूबीसी के खुद के तो ऐसे बहुत से शायद बिल्डिंग्स ही हैं ऐसे चाइनीज़ डोनर्स के नाम पे। ज़रूरी नहीं है कि अगर चाइनीज़ डोनर दे रहा है तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। अब क्योंकि माहौल ऐसा है कि आप कुछ भी चाइनीज़ लिंक अगर निकलेगा तो फिर लोग ये शक जाहिर करेंगे कि भाई देखिए यहाँ पे तो इंटरफेरेंस का मामला है। तो अब इससे बचने के लिए, अब जैसे ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल, और भी यूनिवर्सिटीज़ है पूरे कनाडा में। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, अब पिछले साल के जो आंकड़े हैं स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक, कि टोटल जो कनाडा का स्टूडेंट पॉपुलेशन है आ रहा है फॉरेन स्टूडेंट्स का, उसमें से 12% चाइनीज़ मूल के लोग हैं। सबसे बड़ा ग्रुप दरअसल इंडियंस का है 40%। तो अब लेकिन गवर्नमेंट का फंडिंग इनका बहुत है, मतलब चाइनीज़, आपको पता ही है वैंकूवर वगैरह ये सब जगह डेवलप ही हुए हैं, रियल एस्टेट हो चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाइनीज़ लोगों ने, चाइनीज़ मूल के लोगों ने पैसा डालना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ पे अब क्योंकि इतने सारे एलिगेशंस आ गए हैं और ऑपोजिशन को भी बड़े टाइम बाद कुछ ऐसा इशू मिला है कि जो गवर्नमेंट को कटघरे में वो खड़ा कर सकें। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੀ, ਨੇ। ਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੀਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ट्रूडो फाउंडेशन च पेनिट्रेट करके कोई लाभ उठाना चाहती है? देखिए यहाँ पे अब जैसे कुछ वक्त पहले जो रिसर्च आया था, रिसर्च मतलब ये कैनेडियन CSIC जो है, इसने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दिया था गवर्नमेंट को कुछ वक्त पहले कि जो चाइनीज़, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अब एक नई किताब आई है जो अभी लॉन्च होगी, द मोज़ेक इफेक्ट करके, जिसमें उन लोगों ने ये कहा है, जो 2 ऑथर्स हैं, एक स्कॉट मैकग्रेगर हैं जो पहले कैनेडियन इंटेलिजेंस में थे और RCMP में भी थे। अब उनके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में 90s के दौर में ही बता दिया था कनाडा को कि चाइनीज़ स्टेट का इंटरफेरेंस होगा आपके यहाँ पे, और हो रहा है दरअसल आपके बैकयार्ड में। तो लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कम से कम ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर किसी की तरफ से डोनेशन आ रहा है तो क्या स्टेट इन्वॉल्व्ड है, क्या एक डेडिकेटेड कोई एक मोटिव के साथ ये लोग आए हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको आप वेरीफाई कर नहीं सकते। लेकिन अब क्योंकि एलिगेशन लग गया है, अब शक की नज़र से लोग देखेंगे, क्योंकि एक पूरा माहौल तैयार हो गया है कि चाइनीज़ यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। आपने इलेक्शंस में जो है इसको इंटरफेयर कराया। अब जैसे इनकी तरफ से भी जो इन लोगों ने स्टेप्स लिए हैं,
उसकी वजह से भी लोगों को शक हो रहा है कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपने जिन लोगों को अपॉइंट किया, डेविड जॉनस्टन जो पहले गवर्नर जनरल रहे हैं लेकिन जो ट्रूडो फाउंडेशन के मेंबर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर, आपने उनको सपोर्ट कर दिया ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कि वो बताएंगे आप क्या इलेक्शंस में मुदाखलत हुई थी, कोई इंटरफेरेंस हुआ था। एक और जो है इनके जो इसी कमेटी में जो एक 2021 इलेक्शन में क्या इंटरफेरेंस हुआ था, इसको ये स्टडी कर रहे हैं, तो मॉरिस रोजनबर्ग, तो वो भी ट्रूडो फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए थे। तो आपने तो इसीलिए लोगों को अब शक हो रहा है ना कि इतने सारे लोग जो हैं जो जिनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है उनको ये इन्वेस्टिगेशन पे बिठा दिया गया है कि आप अब पता कीजिए। अब कल प्राइम मिनिस्टर को पूछा गया, जब वो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे, उनको ये पूछा गया तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि भाई ये जो है पोलराइज करने के तरीके हैं। लेकिन शक तो हुआ है लोगों को, सवाल तो पूछेंगे। अब शायद डायरेक्ट कोई इंटरफेरेंस हुआ नहीं अभी, क्योंकि उस पर कोई रजामंदी तो है नहीं, एलिगेशंस लोग लगा रहे हैं। लेकिन अब चाइनीज स्टेट का इंटरेस्ट हमें पता चलता है इससे कि वो चाहते हैं कि एक तो कल्चरल डिप्लोमेसी होता है, दूसरा ये कि आप हर जगह जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप जो आपने $1 मिलियन दे दिया, तब आप उस यूनिवर्सिटी पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो आके रखें। अगर कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें चाइनीज स्टेट की तंकीद हो, तो वो कहने से थोड़े से जो है वो एतराज oblige हो जाते हैं। बिल्कुल। पर दूसरे पासे ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? PL40 ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਰਚਾਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ CIA ਖਰਚੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ बहुत मुल्कों च इस किस्म की इंटरफेरेंस की होएगी। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे टिन साहब वो एक मुहावरा इस्तेमाल होता है आजकल, मैंने वो पंजाबी में बोलते हैं कि तुआडा तेरा मेरा कुत्ता कुत्ता तुआडा कुत्ता टॉमी। ये वाली बात है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स और क्लियरली CIA के जरिए जो है, ऐसा कोई दुनिया का मुल्क नहीं है जिधर CIA ने जो है इंटरफेयर नहीं किया है। और कोल्ड वॉर के ज़माने में सोवियत यूनियन का KGB, अमेरिका का CIA, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बनाना रिपब्लिक, हमें एक टर्म ही हमें मिला कि साउथ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो किया एक कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, जिसका बिजनेस था केलों का, तो आपने ये सब आपने किया हुआ है। तो वो कहते हैं ना, इट इज़ वेरी रिच कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, कि आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सबके हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किया बुरा है तो आप कैसे आप दूसरे। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਰੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਝੋਕ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਨੰਗਾ ਲੈਣ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੰਗਾ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵੀ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? जी जी बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है थिन साहब आपका, क्योंकि अब चीन एक अजीम ताकत है और जो नया कोल्ड वॉर हमें दिख रहा है कि यूक्रेन वॉर के बाद अब दुनिया के सियासी हालात बदल गए हैं कि अब यूनाइटेड स्टेट्स को और पूरे वेस्ट को ये लगने लगा है कि क्योंकि चीन ने जाके अब रशिया को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर दिया है कि असला बारूद भी दे रहे हैं और एक जो है पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। तो पहले ऐसा होता था कि चीन रशिया पे डिपेंडेंट था हथियारों के लिए, हवाई जहाज़ के लिए, लेकिन अब जो है पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, पैसे के लिए, अब रशिया लग रहा है चीन पे डिपेंडेंट है। तो ये एक नया ब्लॉक तैयार हो रहा है और इसमें वेस्ट को लग रहा है कि अब ये बहुत बड़ी कुव्वत है,
अब इसको किस तरह से काउंटर किया जाए। हथियारों से ये बात बन नहीं सकती, तो एक इंटेलेक्चुअल फाइट देना चाहिए, एक प्रोपेगेंडा फाइट देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ये सारे जो है ज़राए हैं जिनका इस्तेमाल होता है। और चाइनीज़ इंटरफेरेंस की बात अभी क्यों हो रही है, ये बात भी सोचना बड़ा ज़रूरी है कि कुछ तो है उनका, वो कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक आपके पास इतने एलिगेशंस लगाने के बावजूद कोई ठोस कोई ऐसा एविडेंस तो है नहीं। हाले तक तो है नहीं। हाँ, जॉनस्टन कोई कढ़ ले तो क्या नहीं जा सकता, हाँ, जो रह गए तो। जी जी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अब जैसे अब हिंदुस्तान ने भी बहुत मुल्कों में जाके जो है, अब अफगानिस्तान में आपने जो है तैयार किए ऐसे वो जो एक दौर था, यूनाइटेड स्टेट्स ने तो किया ही है। हर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है। इंडिया में यूएसएसआर ने कितना इन्वेस्ट किया था आप जानते हैं। चाइनीज़ इंस्टीट्यूशंस में भी यूनाइटेड स्टेट्स में 60-70s के दौर में इन्वेस्ट किया था उस ज़माने में, कि वेस्ट के साथ एक क्लोजनेस था ना। अब क्योंकि रशिया और चाइना क्लोज आ गए हैं, हो गए हैं, बड़े नज़दीक हो गए हैं, तो इसीलिए वेस्ट को लग रहा है कि ख़तरा है। लेकिन डायरेक्टली इसको इस्टेब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। और चाइनीज़ स्टेट का एक इंटरफेरेंस वो कोशिश तो करेगा कि हम हर तरह से जो है, अब जैसे चाइनीज़ पुलिस स्टेशंस का मामला सामने आया कि उन लोगों ने अपने डिसिडेंट्स को, या फिर वो लोग जो कानून से फरार थे, उन लोगों को लीगली इलीगली वापस ले जाने के लिए उन लोगों ने ये स्टेशंस इस्तेमाल किए। अब वैंकूवर में भी एक उनका स्टेशन है, रिचमंड से कहते हैं। हाँ, रिचमंड में आरसीएमपी गई थी बड़ी तादाद में, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम तो हैं, तादाद में हम आपसे ज़्यादा हैं यहाँ पे कम से कम। लेकिन चाइनीज़ स्टेट कोशिश कर रही है अपना पावर दिखाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में वो आगे हैं, दुनिया में ऐसा शायद ही कोई और मुल्क है जो चाइना से आगे हो मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन जो डिप्लोमेसी है, और चाइनीज़ साइड से अब शी जिनपिंग के ज़माने में अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। तो ये सारी बातें हैं, अपनी जगह पे सही भी हैं। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ कई किस्म की पोलराइजेशन शुरू हो सकती है। बिल्कुल हो गई है, क्योंकि कोविड के दौर में हमने देखा यहाँ पे चाइनीज़ मूल के लोगों को, या फिर जो जिनके एशियन फीचर्स हैं सो कॉल्ड, उन लोगों पे अटैक्स हो रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में हो रहे थे। रेसिज्म का मामला बड़ा सीरियस हो गया था यहाँ पे। अब इन एलिगेशंस की वजह से कैनेडियन सोसाइटी में बहुत गलत इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चाइनीज़ मूल के लोग हैं, कोई भी किसी भी ऑफिस में आपको दिखेगा कि कोई चाइनीज़ मूल का कोई आदमी बैठा हुआ है, तो शक लोगों को होगा कि ये ज़रूर चाइनीज़ मुदाखलत का नतीजा है। गवर्नमेंट का पेजा है। हाँ, तो जो यहाँ पे पले बढ़े हैं उनकी जो है वफादारी पे शक किया जाएगा अब। और ये पूरी कम्युनिटी के लिए ही नहीं, पूरे कैनेडियन सोसाइटी के लिए ख़तरे वाली बात होगी कि क्या कनाडा सिर्फ कुछ लोगों का हो जाएगा फिर। तो ये जब भी ऐसे एलिगेशंस आते हैं तो बड़े ख़तरनाक साबित होते हैं। तो अब चाइनीज़ मुल्क के लोगों के लिए, अब कल को अगर ऐसे एलिगेशंस किसी साउथ एशियन मुल्क के बारे में भी लगने लगे, तो फिर क्या साउथ एशियन लोगों के बारे में भी ऐसी बातें होगी? तो ये हमें सोचना चाहिए। और कुछ चीज़ों के इमीडिएट पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं। शायद अपोजिशन को एक बहुत बड़ा हैंडल मिल गया है अब गवर्नमेंट को जो है कटघरे में खड़ा करने के लिए। लेकिन जब अगर अगले इलेक्शंस में अगर वो पावर में आएंगे, क्या फिर वो इसी को आगे बढ़ाएंगे? नो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਫੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੀजिंग ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। और क्या फिर पॉलिटिकल पार्टीज चाइनीज मूल के लोगों को टिकट देने से एतराज़ करेंगी? हाँ,
तो ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਕਾਬਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ हाँ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਖਾਮਖਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਛੱਡੋ हाँ और एक कम्युनिटी का पूरा घेटोइजेशन हो सकता है इससे तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि उनको भी लगने लगेगा कि हम जो है कैनेडियन सोसाइटी के पार्ट नहीं है अगर हम गोरे नहीं है तो हम यहाँ के नहीं हैं तो ये अगर लोगों में एक सेंस आ गया तो फिर जो है सोसाइटी में तफरात पैदा हो जाएंगे ਔਰ ਇੰਤਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਿਸਟਰ ਸਿਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ जी ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ जी जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਗੋਰਾ नहीं है तो ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि मेरे चीन पे पैसे बिल्कुल लगे। सही बात है हाँ और यहाँ पे यही होता है कि जो कंजर्वेटिव या जो राइट विंग के जो लोग हैं वो ऐसे एलिगेशंस का इस्तेमाल करते हैं अपने रेसिस्ट आइडियाज़ को फैलाने के लिए तो इसीलिए जो है पूरे सोसाइटी के लिए बहुत चैलेंजिंग है ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है सिर्फ ट्रूडो फाउंडेशन का तो खैर उनको तो जवाब देना पड़ेगा उनकी जवाबदेही बनती है फैमिली के नाम पे है ना अल्टीमेटली और वो कहते हैं कि हम तो उससे जो है अलहदा हो गए थे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना मैं अलहदा हो गया यहाँ से या फिर जो फाउंडेशन के जो लोग हैं जो डेविड जॉनस्टन वो हट गए उससे जो कोई दूसरा अपॉइंटमेंट होता है तो फिर वो हट जाते हैं इस फाउंडेशन से लेकिन क्या ये सब बातें इन सब बातों से क्या ये जो इल्ज़ाम लगे हैं इन पे क्या वो दूर हो जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है शर्मा जी बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी बहुत शुक्रिया देखते हैं की बनता हूँ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सीन जी जी बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया थैंक थैंक यू